Okay, your session is live, Swati ma'am. You can introduce to Mr. Sambhav and Mr. Sambhav can start the session after that. You are on mute, ma'am. Hello everyone. Today we are having a gardening session with Mr. Sambhav. Mr. Sambhav is a chartered accountant and an MBA from IIM Ahmedabad. And he is the founder of the company, the Banyan Company. And he's a passionate gardener with over 15 years of gardening experience. And he likes plants propagation and has more than 500 plants with him. And if you want, you can do courses with Mr. Sambhav also. I have done with one, and that was really wonderful because I like gardening, but I don't know whenever I bring plants, so it always dies. So, you know, due to one reason or other. So, but Sambhav sir is helping me a lot in this. So over to you, Sambhav sir. Thank you so much, Swati Thank you ma'am. so much. Yeah. So can you put my my screen on spotlight? Yeah. Yeah. I've done it. Yeah. All right. So first of all, thank you each and every one of you for joining in, taking out time for this session. I hope you'll like this session and you'll get to learn something about plants. Today's topic is going to be about container gardening. As Swati ma'am told that most of the people are living in apartments and they do not have luxury what people in say villages have of land, and so they have a lot of space for growing plants, but people who are living in urban areas do not have the luxury of land and space to grow their plants and food. So we only have to resort to small space gardening, container gardening, and all the plants are contained. So that is why it is called a container. So something like as small as this. So this is a small container in which you can grow many plants. So we'll talk about this also. But today's topic is going to be about container gardening. It is going to be a short session, 1 hour session. So let us quickly start. Whatever questions you have, you can write it in the chat box, or you can tell Swati ma'am. She will convey the questions to me and I'll answer them. And also we'll keep around 5 to 10 minutes at the end as Q&A session where you can ask anything about your plants. If your plant is not doing good, if you are having any problem with any of your plants, you can show us on the video, and we can just take the those questions and we can reply on that. So starting with the session, so first of all, container gardening is nothing different. So as you do gardening in say gardens or lawns, so it is very similar to that, just that you have to optimize all your resources. So you have limited space, limited amount of dirt, or limited amount of soil. So in that small space you have to optimize everything. You want to get the best results, so that is why we have to take extra bit of care for all of our plants. We have to give them perfect soil, perfect conditions, so that whatever space you have, you basically optimize it, and you get the best out of whatever resources you have. So first of all, for starting container gardening, first of all what you need to do is, first of all, select the plant, and that is a very important thing. If you say have a small space, if you have an 8-inch pot, and if you try to grow something which needs a lot of space, so something like a cucumber, if you try to grow cucumbers in this, then you won't be able to get, you might get 1 or 2 cucumbers here and there, but you'll need a lot of space to grow cucumbers because the roots spread out a lot. And in a small container like this, you won't be able to grow container. You'll need something like a 12-inch container or a 14-inch container, or maybe bigger than that as well. But if you have something like this, you should select something which grows very easily in this. So first of all, the selection of plant is very important, and before selection of plant, you must know what are the different types of plants. I have a lot of plants here, but it is very difficult to categorize each and every one of them. But I'll quickly show you the plants that I have. And whenever you are going to a nursery to buy a new plant,
You first, So, Mr. Sambhav, sorry for the interruption. yeah. Would be great if you will be, you choose your language in Hindi. ऑल राइट Yeah. सो ठीक है मैम। Thank तो you. सबसे पहले जो आपको करना होता है जब भी आप कोई प्लांट खरीद के आते हैं, तो सबसे पहला काम जो करना होता है वो आपको सबसे पहले उसको बाइफरकेट करना होता है, कैटेगराइज करना होता है कि ये किस तरह का प्लांट है। क्या ये इंडोर प्लांट है, क्या ये आउटडोर प्लांट है, क्या ये परमानेंट प्लांट है, क्या ये सीजनल प्लांट है। तो जब भी आप कोई प्लांट लेके आते हैं तो आपको सबसे पहले ये सब पता होना चाहिए अपने प्लांट के बारे में। और क्योंकि इतने सारे प्लांट होते हैं तो फिर कहीं पर भी ये कहीं पर भी ये इसको मैनुअल की तरह देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको जो भी आप प्लांट लेके आते हैं सबसे पहले नर्सरी वाले से उसका नाम पूछिए, उसकी फैमिली का नाम पूछिए कि सपोज ये फाइकस फैमिली का है, ये सक्यूलेंट है, ये कैक्टस है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, जो बेसिक चीज़ें हैं, उससे जो केयर है वो आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आपके जो बेसिक कैटेगरीज होते हैं वो सबसे पहला होता है इंडोर प्लांट वर्सेस आउटडोर प्लांट। तो नर्सरी से जब भी आप प्लांट लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको पूछना होता है क्या ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। क्योंकि होगा क्या, अगर वो इंडोर प्लांट होगा और आप उसको धूप में रख देंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर अगर वो आउटडोर प्लांट होगा और आप उसको इंडोर ग्रो करेंगे तो वो बहुत स्लोली ग्रो करेगा और फिर उसका जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी और धीरे धीरे करके वो मरने लगेगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, पूछना है कि क्या ये इंडोर प्लांट है, क्या ये आउटडोर प्लांट है। अगर आप किसी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक नर्सरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक में ग्रीन शेड होता है, एक में ग्रीन शेड नहीं होता। जो ग्रीन शेड के नीचे वाले प्लांट्स होते हैं 99.99% ऑफ द टाइम्स वो प्लांट्स सारे के सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो जब भी आप वैसे प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं जो ग्रीन शेड के नीचे हैं, वो ज़्यादातर इंडोर होंगे और जो बाकी होंगे वो आउटडोर होंगे। तो पहली कैटेगरी हो गई कि इंडोर है, आउटडोर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो आपको सिलेक्ट करनी है वो ये है कि क्या ये मेरा प्लांट परमानेंट प्लांट है या मेरा ये टेम्परेरी या सीजनल प्लांट है। सीजनल प्लांट अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सारे परमानेंट प्लांट ही हैं। और जो भी नए गार्डनर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान यही रहता है कि वो परमानेंट से ही शुरू करें। सीजनल में क्या होता है कि वो एक सीज़न के बाद पूरा का पूरा मर जाते हैं, जैसे कि डेलिया हो गया, पैंजी, पिटूनिया, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए या समर फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, वो ज़्यादा के ज़्यादा ज़्यादातर वो वही वाले प्लांट होते हैं जो 1 से या 2 सीज़न तक चलते हैं, उसके बाद अपने आप पूरा का पूरा मरने लग जाते हैं। और क्योंकि हम नए गार्डनर्स हैं उनके लिए थोड़ा-सा दुःख होता है कि हालाँकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो उनका जो लाइफ स्पैन है वो उतना ही होता है, तो उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि नए गार्डनर्स पहले बहुत मेहनत करते हैं कि हाँ, जो अटैचमेंट होता है प्लांट से वो इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट कीजिए परमानेंट प्लांट से जब भी आप नर्सरी जाएँ। मैं मैंने नर्सरी जब गार्डनिंग शुरू की थी तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होता था कि भैया ये मेरा परमानेंट प्लांट है या ये मेरा टेम्पररी प्लांट है। शुरू में मुझे कम पसंद थे सीजनल प्लांट्स, लेकिन धीरे धीरे करके जब मेरी रुचि बढ़ने लगी गार्डनिंग में तो मेरा जो मुझे इंटरेस्ट है वो सीजनल प्लांट्स में भी आ गया। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ परमानेंट था और मैं सिर्फ परमानेंट वाले ही लेके आता था क्योंकि मुझे पता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रहेंगे। वही जो थर्ड कैटेगरी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, प्लांट्स की नहीं है लेकिन काफ़ी आजकल फेमस प्लांट्स हैं, वो हैं सक्यूलेंट्स हैं, कैक्टाई हैं। और काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो कैक्टाई हैं, जो सक्यूलेंट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे चलते नहीं हैं। तो फिर उसका रीज़न क्या है? तो उसका सिंपल सा ये रीज़न है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप कोई कैक्टस या सक्यूलेंट लेके आते हैं तो अगर नर्सरी वाले से आप पूछते हैं तो 99% नर्सरी वाले यही बोलते हैं कि ये हमारा इंडोर प्लांट है। उसका रीज़न अलग होता है कि वो इंडोर क्यों बोलता है, वो सिर्फ इसलिए बोलता है कि आप इसको बहुत तेज़ धूप में मत रखिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम जितने भी हमारे सक्यूलेंट्स हैं, कैक्टाई हैं, उनको हम अपने टेबल्स पे रख देंगे, अपने घर के अंदर रख देंगे और फिर वो एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता और धीरे धीरे करके जो सक्यूलेंट्स हैं वो मरने लगते हैं। उसका वही रीज़न है कि वो घर के अंदर है। अगर आपको अपने सक्यूलेंट्स गर्मी में भी बचाने हैं तो आपको उसको बाहर रखना होगा, आपको छत पे या अपने बालकनी जो भी है वहाँ पे रखना होगा। लेकिन डायरेक्ट धूप से थोड़ा-सा बचा के रखना होगा क्योंकि इनको थोड़ा-सा कम टेम्परेचर पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी प्लांट्स हैं, वो थोड़े से टॉलरेंट होते हैं। लेकिन थोड़े से डेलिकेट होते हैं तो इनका थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप कोई प्लांट लेके आएँ
तो इस तरह का प्लांट पहले ही पूछ लीजिएगा कि अगर वो कैक्टस सक्यूलेंट है तो उस पे जो केयर है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। उसमें आपको कम पानी देना होता है, उसमें ज़्यादा खाद नहीं देनी होती, वो एक तरह से लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो उसमें जितना ज़्यादा केयर करेंगे उतना प्लांट के लिए ख़राब है, जितना ज़्यादा उसको इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहला काम हमारा जब भी हम कोई प्लांट लेके आते हैं वो यही होता है, प्लांट का नेम पता कीजिए, प्लांट की फैमिली पता करिए। काफ़ी तो कॉमन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये जेड है, काफ़ी कॉमन सक्यूलेंट है, सबको ही पता होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए नर्सरी में जाके उसका नाम पूछने के लिए, क्योंकि बिना नाम के बिना फैमिली के हम कभी भी उसकी ठीक से केयर नहीं कर पाएंगे। जब आपको नेम पता चलता है तब आप उसको ठीक से कैटेगराइज कीजिए कि हाँ उसको कितना पानी चाहिए, उसको कितनी खाद चाहिए, उसको कितनी सनलाइट चाहिए। ये सब चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे कि इसको कैसे हम ठीक से खाद दें, ठीक से पानी दें, ठीक से रोशनी दें, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पता करना है कि उसका प्लांट का करेक्ट कंडीशन क्या है ग्रो करने की। जब आप पहले अपना प्लांट सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसकी केयर पे हम आएंगे। उसकी केयर होगी, उसकी सॉइल कैसे बनाएंगे, उसकी वाटरिंग कैसे होगी, सनलाइट कैसे होगी, उसका पॉट कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ही आसान टॉपिक से हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, ज़्यादा बोरिंग नहीं होते, लेकिन बहुत ही एक आसान टॉपिक है। वो है कि हम बॉटल्स में प्लांट्स को कैसे ग्रो करें। इस तरह की बॉटल्स में अगर आप देखें, यहाँ पर अभी दो तरह के प्लांट्स हैं। एक तो मनी प्लांट है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, किसी भी घर में चले जाइए आपको मनी प्लांट तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा है ये सिंगोनियम, पिंक कलर के लीव्स वाला होता है ये। थोड़ा से अभी इसके हल्के पिंक इसलिए हैं क्योंकि इसमें खाद नहीं डली हुई, लेकिन जैसे ही थोड़ी खाद मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी मिलेगी, इसका बिल्कुल ही ब्राइट पिंक कलर के इसके लीव्स हो जाते हैं, तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इस तरह से हम अपने बॉटल्स में कैसे प्लांट्स को उगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे और आपको इस तरह की रूट्स मिल जाएं जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है। इस तरह की रूट्स को पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी वो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें भी आपको वही चीज़ करनी होगी, आपको सिलेक्ट करना होगा आपको किस तरह का प्लांट ग्रो करना है। बहुत कॉमन कॉमन प्लांट्स होते हैं जो कि क्रीपर्स होते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं, वो प्लांट्स ज़्यादातर पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट सबसे कॉमन है। सिंगोनियम अभी हमने बात की। वैसे ही वॉन्डरिंग ज्यू होता है, वॉन्डरिंग ज्यू के पत्ते थोड़े से लाल से होते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से आप मिंट भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें पानी में मिंट को ग्रो करिए, उसकी रूट्स आने पर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो अभी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है जब भी हम बॉटल में ग्रो करते हैं। लेकिन ये सेम कॉन्सेप्ट आप किसी भी प्लांट में ग्रो कर सकते हैं जो पानी में आपको रूट्स लाने तक का काम कर देगा। उसके बाद आपको मिट्टी में डालना होगा। सबसे पहले आपको एक एटलीस्ट इतनी कटिंग चाहिए रहेगी, अराउंड 6 से 7 इंच की कटिंग चाहिए रहेगी। उसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है, उसमें आपको नोड्स चाहिए। ये जो यहाँ पर रूट्स होती है इनको हम नोड्स कहते हैं। जहाँ जहाँ से पत्ते निकलते हैं उनको नोडल एरिया कहते हैं, और यहीं से रूट्स निकलती हैं। और कहीं अगर ये दोनों नोड्स हैं, इन दोनों के बीच में कहीं से भी रूट नहीं निकलेगी, कहीं पर भी रूट डेवलपमेंट नहीं होगी। रूट्स जो बनेंगी वो इसी नोड एरिया से बनेंगी। तो यहाँ पर इस वाली जो कटिंग है इसमें 1 2 3 4 5 5 नोड एरिया हैं। ट्राई कीजिए 4 से 5 नोड एरिया हो जो पानी में जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा नोडल एरिया पानी के अंदर जाते हैं उतने ज़्यादा रूट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो 4 से 5 नोडल एरियाज आपको पानी में डालने हैं। और फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी पत्ता पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर पत्ता पानी के अंदर जाता है तो उसमें फंगस बनने का, बैक्टीरिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे जो रूट जो हमारी कटिंग है वो सड़ने लगती है। तो हमें उससे बचाने के लिए सिंपल सा ये करना है कि नीचे वाले सारे लीव्स को हमें हटा देना है, ऊपर 1 या 2 लीव्स हम छोड़ देंगे और इसको बस पानी में डाल देना है।
इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। इसको थोड़े दिन पड़े रहने देंगे, थोड़े टाइम बाद इसमें अपने आप रूट्स बनने लग जाएंगी कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद हमारा जो प्लांट है वो एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। और जिस तरह का ये एक शोपीस सा बन जाता है, उस तरह से आप कहीं पर भी अपना प्लांट लेके बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगती। इसमें बस आपको एक बॉटल चाहिए, कोई भी पुरानी बॉटल। ये कैवेंटस की पुरानी बॉटल थी, कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद हमने फेंकी नहीं, तो बस इसमें हमने पानी डाल दिया। क्यों कलर इसका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है वो भी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन बस इसमें पानी डाल के इसमें कटिंग डाल ली, और ये एक तरह से एक शो पीस सा हो गया। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, इसको आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, किसी भी विंडो के पास रख सकते हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी एक आसान काम है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको बस एक कटिंग लेके आनी है 5 से 6 इंच की, और फिर उसको पानी में डाल देना है, और फिर वो आपका जो प्लांट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। इसकी केयर कैसे करनी है वो भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं। ये सो ये क्वेश्चन आया है, आ ही गया कि इसका पानी को हमें चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसकी जल्दी से मैं केयर के बारे में बात करा देता हूँ कि इसको क्यों हमें पानी चेंज करने की ज़रूरत है, कितने इंटरवल में पानी चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं, तो हमें 2-3 काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट, इसका जो पानी है वो हमें रेगुलरली चेंज करना होता है। सेकंड काम जो हमें करना है वो हमें बॉटल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड काम जो होता है वो हमें इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन डालने की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी में पानी चेंज करना है, वो बॉटल कब साफ़ करनी है, और न्यूट्रिशन कौन सा देना है जिससे जो प्लांट है वो जल्दी से ग्रो करे। तो सबसे पहला जो काम होता है, जो सबसे पहले जो दिमाग में भी आता है हमारे, कि पानी में हम कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और जब भी हम पॉट्स की बात करते हैं कि हाँ, पॉट में कभी ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, अंडर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग करने से रूट्स जो है सड़ने लग जाएंगी, और यहाँ पर हमारा जो प्लांट है वो पूरा का पूरा ही पानी में ग्रो हो रहा है फिर भी सड़ नहीं रहा। उसके क्या रीज़न है? उसका सिंपल सा ये रीज़न है कि अगर आप कभी भी नेचर में देखेंगे, नेचर में कभी भी पॉन्ड्स में जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें कोई प्लांट नहीं होता। वहीं रिवर के आसपास बहुत सारे प्लांट होते हैं। उसका एक सिंपल सा यही रीज़न है कि रिवर में कभी भी ठहरा हुआ पानी नहीं होता, उसमें पानी हमेशा फ्लो करते रहता है, और जब जब पानी फ्लो करता है, नया पानी आते रहता है, तो कभी भी सड़न नहीं होता। कभी भी रूट्स जो हैं वो रॉट नहीं करती, वो सड़ती नहीं है। वही हमें एक तरह से इसी में भी कॉपी करना है। इस छोटी सी बॉटल में भी अगर हम कंटिन्यूअसली पानी को फ्लो कराते रहें, तो वो कभी भी रूट्स हमारी सड़ेंगी नहीं। तो उसका सिंपल सा तरीका, जो छोटा सा जो शॉर्टकट होता है, वो यही है कि हम पानी को बदलते रहते हैं। जितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी हम पानी को बदलेंगे, उतने ही कम चांसेस होंगे जो प्लांट है उसके सड़ने के। तो अभी जब भी हम नया प्लांट लगाते हैं, नई कटिंग लगाते हैं, जस्ट अ मोमेंट, देयर इज सम डिस्टर्ब या सो जब भी हम कोई नया प्लांट लगाते हैं, कोई भी नई कटिंग लगाते हैं, उसके जो सड़ने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स नहीं है। जो प्लांट है बहुत डेलिकेट होता है। तो क्या हमें जो पानी है वो हर ऑल्टरनेट डे पे चेंज करना चाहिए। एक दिन छोड़ के जो है, हमें जो है पानी जो है बदलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जो प्लांट है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, उसमें रूट्स काफ़ी बड़ी बन जाती हैं, वो प्लांट थोड़ा सा एजेड हो जाता है बॉटल के अंदर, तब हम अगर 2 हफ्ते में एक बार भी पानी को बदलते हैं तो वो चलता है, वो इतनी जल्दी सड़ता नहीं है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर जो प्लांट है वो नया है, उसकी रूट्स बिल्कुल कम है, तब हमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी-जल्दी उसको पानी को बदलना है। जैसे कि ये है जिसमें ज़रा भी रूट्स नहीं है अभी, तो इसका पानी हम हर अल्टरनेट डे में चेंज करेंगे। और दूसरा है ये जिसमें बहुत सारी रूट्स हैं, इसका पानी हम हर 2 हफ्ते में एक बार भी अगर चेंज करें तो चलेगा। ये ज़्यादा जल्दी इतना खराब नहीं होगा, ये सड़ेगा नहीं, और ये अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो सबसे पहला काम होता है पानी को चेंज करना, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है बॉटल्स को साफ़ करना। तो जब भी हम पानी चेंज करते हैं तो एक काम हमें ज़रूर और करना चाहिए। इतनी जल्दी साफ़ नहीं करना चाहिए, हर 15 दिन में एक बार भी साफ़ करेंगे तो चलेगा। तो जब भी हम पानी चेंज करें, इस पूरी बॉटल का पानी आप अच्छे से निकाल लीजिए। इसमें 2 या 3 ड्रॉप आप कोई भी सोप को डालिए। अगर आपका डिश सोप है तो वो, नहीं तो शैम्पू,
वो इसमें आप डालिए। अच्छे से बॉटल को अंदर से साफ करिए, पानी से झाग आने दीजिए और फिर उस पानी को निकाल के इस बॉटल को अंदर से साफ करिए, जिससे जितने भी इसके अंदर के बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीड़े हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाए और किसी भी तरह की फंगस लगने की कोई भी चांसेस ना रहे। तो ये 2 चीज़ें करनी काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं करते तो हम ज़्यादा टाइम के लिए जो बॉटल्स हैं उसमें प्लांट्स को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो काम है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन द सेंस कि अगर आप नहीं करते तो प्लांट मरेगा नहीं। अगर आप पहली 2 चीज़ें जैसे कि पानी चेंज करना और पानी की बॉटल को साफ रखना, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका कभी भी प्लांट मरेगा नहीं। लेकिन सिर्फ जिंदा रखना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्लांट अच्छे से ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने के लिए इसको खाना देना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, आप सॉलिड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जस्ट दैट हर 15 से 20 दिन के बीच में आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र लेके आप इसमें डाल दीजिए। सॉरी। तो ये हमने इसमें एक छोटा सा पीस एक कंपोस्ट का डाल रखा था, वर्मी कंपोस्ट का डाल रखा था, जो कि धीरे धीरे करके पानी में घुले जा रहे हैं और पानी में ही अपने न्यूट्रिशन को दिए जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे ही करके इस छोटी सी कटिंग में भी जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिशन जा रहा है। तो इसीलिए इस जो पानी का रंग है थोड़ा सा पीला है, क्योंकि हमने इसमें कंपोस्ट डाल रखी है। अगर आप कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, सीवीड फर्टिलाइजर आता है, केमिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं और जो पानी में डिज़ोल्व होने वाले फर्टिलाइजर्स आते हैं एनपीके के नाम से, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है पूरा का पूरा, ये सीवीड फर्टिलाइज़र होता है और काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इससे काफ़ी प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। इसका यूजुअली हम 2 या 3 बस ड्रॉप्स लेते हैं और फिर हम इसमें डाल के छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो सारे के सारी जितनी भी रूट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो सबसे पहला जब भी आप कोई बॉटल में पानी में प्लांट उगाएं, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इससे आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। यस, तो आप अपना जो एनपीके पाउडर है वो भी इसमें डाल सकते हैं। जस्ट दैट वो आपको ये देखना होगा कि वो वाला एनपीके डिज़ोल्व हो जाएगा। कई ऐसे एनपीके भी होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, तो फिर वाटर सॉल्युबल एनपीके भी आते हैं। तो आप उस तरह का वाटर सॉल्युबल एनपीके लेके वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता, थोड़ा सा ही डालना होता है। आधा चम्मच या 1/4 चम्मच आप लेके इसमें डाल दीजिए और फिर वो 15-20 दिन 25 दिन तक पूरा सही रहता है। नेम ऑफ द फर्टिलाइज़र ये सीवीड है। जो सी होता है हमारा ओशन सी, उसमें जो वीड्स होते हैं उससे जो ऑयल निकलता है उससे ये बनता है। सो सीवीड फर्टिलाइज़र इसको कहते हैं। एक और जो क्वेश्चन बॉटल्स में आता है वो ये आता है कि हमें ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है या हमें ओपेक बॉटल लेनी है जिसके अंदर आर पार हम नहीं देख सकते। तो कभी भी हम बॉटल्स में ग्रो करते हैं तो ट्राई कीजिए कि ओपेक हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। इस तरह की ग्लास की बॉटल्स अगर भी हों तो वो अलग रंग के ग्लास की हों, ब्लू कलर के ग्लास की हों, नहीं तो ब्लैक कलर के ग्लास की हों, जिससे कम से कम लाइट अंदर जाए। अगर ग्लास की है तो आप इसके ऊपर कपड़ा बांध दीजिए, क्योंकि रूट्स को लाइट पसंद नहीं होती एज कम्पेयर टू द प्लांट। प्लांट हमेशा लीव्स से ही लाइट अब्जॉर्ब करता है और रूट्स को कभी भी लाइट पसंद नहीं होती, उनको अंधेरा पसंद होता है। तो बॉटल्स का अगर चूज करना हो तो आप हमेशा ओपेक बॉटल प्रेफर करिए। लेकिन अगर आप इस तरह की, अगर ये जिस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉटल है उसमें भी ग्रो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है और जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत आसानी से ग्रो करता है। तो ये सबसे पहला काम है जब भी आप बॉटल्स में ग्रो करते हैं। इसके बाद जो है वो प्रॉपर कंटेनर गार्डनर जो होता है, कंटेनर गार्डनिंग होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के कंटेनर्स में हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरह के बैग्स में हम ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी कंटेनर में मिट्टी के साथ हम ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं एक 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, आई विल टेक द क्वेश्चन और फिर उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। हेलो सर। यस मैम। फर्टिलाइजर का नाम क्या बताया था आपने? वो जो सीवीड दूध में डालना फर्टिलाइजर, है?
ये मैम कोई भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइजर आता है सीवीड फर्टिलाइजर के नाम से। तो क्या नाम है? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। प्लीज टेक्स्ट। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी। ओके। तो ये मैंने लिख दिया है वहाँ पे चैट बॉक्स में, सीवीड फर्टिलाइजर के नाम से आता है। और काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब इन तरह की बॉटल्स में कोई दिक्कत नहीं आती, प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। बाकी अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं भी है तो आप सिंपल कोई कंपोस्ट का एक टुकड़ा लेके उसको बॉटल में डाल सकते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके पूरे प्लांट को फर्टिलाइज कर देता है। ओके, थैंक यू सर। सर हाँ। एक क्वेश्चन और है, यूरिया भी डाल सकते हैं क्या हम लोग? यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया ज़्यादातर हम प्रेफर इसलिए नहीं करते कि यूरिया बहुत ही एक्सट्रीम वो होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। और फिर जी। आजकल लोग अपनी जो खेती बाड़ी है उसमें भी यूरिया को बहुत कम प्रेफर करते हैं, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। तो आपको भी हम थोड़ा सा इसमें यूरिया डालने से इसलिए मना करेंगे क्योंकि ये वाला पानी आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने प्लांट्स में डालेंगे, प्लांट्स में नहीं तो जो भी आपके जब भी आप प्लांट का पानी चेंज करेंगे तो आप नॉर्मल प्लांट्स में डालते हैं हम, या जी नहीं तो जी। कोई भी गार्डन में है वहाँ डाल देंगे। तो वो जो यूरिया है बहुत टाइम तक रहता है और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है। इसलिए आजकल लोग अपनी खेती बाड़ी में भी यूरिया का कम से कम प्रेफर करते हैं। वो भी एक तरह से नाइट्रोजन का ही सोर्स होता है जिससे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं। और कंपोस्ट भी, कंपोस्ट को आप प्रेफर करिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू हेलो। मैम। यस मैम। हेलो। ये मुझे ये पूछना था कि प्लांट्स में एक्चुअली वाइट कलर के कीड़े आ जाते हैं जितनी हम्म ज्यादा गर्मी होती है। तो हम्म। वो किसी भी मतलब पानी डालने से या कुछ भी कर लिया लेकिन वो जाते नहीं है, वो प्लांट को पूरी तरह से खा जाते हैं। हाँ जी, तो उनको उसके लिए क्या? ज़्यादातर मीलीबग्स कहते हैं। वो ज़्यादातर हाँ, मिली बग्स। हाँ। हिबिस्कस के प्लांट में लगते हैं, चिलीज के प्लांट में लगते हैं, नहीं तो भिंडी के प्लांट में लगते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान जो होता है वो होता है एक चिली और गार्लिक का पेस्ट बनाना होता है। या आप एक पूरी जो पूरा गार्लिक होता है वो पूरा ले लीजिए, 3 से 4 चिलीज लेके उनको अच्छा सा पेस्ट बना के एक किसी भी पानी की बॉटल में उसको रख के 3 से 4 दिन तक उस पानी को रखिए। और फिर जब उसको यूज़ करने लगे तो उसमें थोड़ा सा साबुन और मिला के और फिर उसको प्लांट पे स्प्रे करिए। तो फिर उससे जितने भी मीली बग्स हैं वो 1 या 2 एप्लीकेशन के बाद हट जाते हैं। और वैसे ही जितना मतलब ज्यादा फूलों के लिए जैसे वन एक टाइम फूल आते हैं उसके बाद में पता नहीं अपने आप ही फूल आना बंद हो जाता है हाँ प्लांट पे। जी। तो हाँ उसके जी। लिए कौन सा अच्छा ऐसा फर्टिलाइजर है हाँ कि जी। मतलब? तो उसके 2 रीज़न होते हैं कि फर्टिलाइज़र एक कमी है, वो एक रीज़न है। जो दूसरा रीज़न है कि फ्लावर्स कभी भी सेम ब्रांच पे दोबारा नहीं आते। आपको ब्रांचिंग को प्रमोट करना होगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और ब्रांचिंग को प्रमोट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि सपोज जैसे आपका फ्लावर एक ब्रांच पे आ गया, उस ब्रांच को आप आधा कट कर दीजिए, उसको प्रूनिंग कहते हैं। और जितना आप प्रूनिंग करेंगे उतनी नई ब्रांचेज आएंगी, और जितने नए ब्रांचेज आएंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लावरिंग होगा। तो एक काम तो ये होता है जो प्रूनिंग का होता है। दूसरा खाद होता है, खाद पानी वगैरह, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या चीज़ें किस मात्रा में चाहिए रहती हैं। लेकिन फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रूनिंग करना। प्रूनिंग के बाद ब्रांचिंग होगी, उसके बाद आप खाद दे सकते हैं। ये भी आप दे सकते हैं, जो इस तरह का फर्टिलाइज़र है इसको भी आप दे सकते हैं। एटलीस्ट 10 ml आप ये वाला फर्टिलाइज़र पानी में मिक्स कर दीजिए, और ये वाला पानी आप 1 लीटर पानी अपने प्लांट्स को दीजिए। तो ये भी फॉस्फोरस से रिच होता है, और फॉस्फोरस ही फ्लावरिंग में हेल्प करता है। तो ये आप डाल सकते हैं। फॉस्फोरस से फ्लावरिंग और रूटिंग दोनों में हेल्प होता है, इसलिए हम ये वाला पानी इसमें डालते हैं। तो ये वाला आप फ्लावरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको घरेलू अगर नुस्खा चाहिए इसका, तो उसके लिए आप चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती जो होती है आपकी, वेस्ट चाय पत्ती होती है, वो आप जो फेंकी है नमक, उसको आप अच्छे से धो के उसको सन में 2 या 3 दिन के लिए ड्राई कर लीजिए। और फिर उस चाय पत्ती को अपने प्लांट्स में, हिबिस्कस के प्लांट में या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें डालिए। आपकी जो फ्लावरिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके, ऑलराइट। थैंक यू सर। हाँ जी।
तो अब मैं जल्दी से एक बार सॉइल के बारे में भी बात कर लेता हूँ कि सॉइल में कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है और उस किस किस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि कंटेनर में आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे। कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है। 1 न्यूट्रिशन, जो प्लांट का खाना है वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड वाटर, पानी बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। और थर्ड होता है लाइट। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से ये 3 चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज करते हैं और किस तरह से हम किसी भी कंटेनर गार्डनिंग में या बालकनी गार्डनिंग, जो भी स्मॉल स्पेस गार्डनिंग होती है, किस तरह से हमें ये सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है जिससे जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो प्लांट का आता है वो सॉइल से आता है, इसीलिए सॉइल का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, सॉइल का अच्छा होना ज़रूरी है, सॉइल की क्वालिटीज़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कई बार देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने इसमें खाद भी डाली, कोकोपीट भी डाली, ये भी डाला, वो भी डाला, फिर भी मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। उसका रीज़न है कि जो सॉइल का जो पूरा का पूरा मिक्सचर जो सॉइल का बना है वो अच्छा नहीं है। सॉइल का जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने बात की कि सॉइल में न्यूट्रिएंट होने चाहिए, न्यूट्रिशियस सॉइल होनी चाहिए, उसमें अच्छे से खाद मिली होनी चाहिए, उसमें अच्छे से अगर कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, नहीं तो खाद में कोई भी कंपोस्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। तो न्यूट्रिशियस होना सबसे पहला उसका ज़रूरी है। उसके अलावा उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पानी डाला और वो पानी झट से नीचे से निकल गया और कुछ भी पानी मिट्टी गीली नहीं रही और सारा का सारा पानी नीचे से निकल गया। तो उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है उसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो ये जो लास्ट की दोनों चीज़ें हैं थोड़ी सी काउंटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि पानी स्टोर भी करना चाहिए और एक्सेस पानी निकलना भी चाहिए। तो इतना ही पानी स्टोर करना चाहिए सॉइल में जितना कि उसको ज़रूरत है। जितना भी ज़्यादा पानी होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से निकल जाना चाहिए। उस तरह की सॉइल काफ़ी अच्छी होती है। और जो फोर्थ क्वालिटी है जो सॉइल की, वो सॉइल काफ़ी लाइट होनी चाहिए। अगर आप अपने प्लांट्स को, अगर अपने पॉट्स को अगर आप जाके देखें तो उसमें आप अपने फिंगर अच्छे से डाल सकते हो। ऐसा ना हो कि वो इतनी टाइट है कि आप अपनी फिंगर नहीं डाल पा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइट सॉइल होगी उतना ही डिफ़िकल्ट रूट्स का ग्रो करना होगा और जितना आसानी से रूट्स सॉइल में ग्रो करेंगी उतनी ही तेज़ी से जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। तो जितनी सॉफ्ट सॉइल होगी उतना आसानी से आपके लिए भी गार्डनिंग करना होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहला काम जो करना चाहिए किसी भी गार्डनिंग एक्टिविटी में, वो सॉइल पे फोकस करना चाहिए। सॉइल अगर अच्छी होगी तो आपका काम आधा हो जाता है। आप ओवर वाटरिंग नहीं करते, आप अंडर वाटरिंग नहीं करते, रूट्स अच्छे से ग्रो करती हैं, रूट्स हेल्दी रहती हैं, आपको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है, तो फिर आपका जितना भी एफर्ट है गार्डनिंग में वो अपने आप कम हो जाता है। तो पहला काम होगा सॉइल को अच्छे से ग्रो करना। उसके लिए मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस किस तरह की सॉइल होती हैं। सबसे पहला यहाँ पर सैंड है, रिवर सैंड इसको कहते हैं, और किसी भी कंस्ट्रक्शन स्टोर में ये मिल जाता है, हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है, जहाँ पे सीमेंट मिलती है, बजरी मिलती है, कुछ भी ईंट पत्थर मिलते हैं। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे आप बोल दीजिए या तो रेत, जो ग्रे कलर की रेत होती है, रिवर सैंड होती है, वो दे दीजिए, नहीं तो आप रेता बोलेंगे वो समझ जाएंगे। नहीं तो आप उन्हें बोले मुझे गार्डनिंग के लिए रेत चाहिए, वो समझ जाएंगे और वो आपको ये दे देंगे। और ज़्यादा महंगी नहीं आती, काफ़ी सस्ती आती है, 5-6 रुपए किलो आती है ये। तो ये आप बहुत आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से ले सकते हैं। इसका जो पर्पज़ है डालने का वो यही है कि ये जो ड्रेनेज है वो इम्प्रूव करती है, सॉइल को लूज़ बना के रखती है। तो ये आपको डालना रहेगा अपनी सॉइल में। दूसरा है कोकोपीट। कोकोपीट, नारियल के बुरादे को कोकोपीट कहते हैं, और ये जो कोकोपीट है ये पानी को होल्ड करती है, और जिस तरह ये ड्रेनेज में हेल्प करती है ये पानी को स्टोर करने में हेल्प करती है। और तीसरा जो चीज़ है वो है कंपोस्ट। किसी भी तरह का कंपोस्ट, खाद, आप गाय की गोबर ले सकते हैं, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। अपने घर में जितना भी गीला कचरा होता है उसका किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। आइडिया है कि एटलीस्ट ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, कंपोस्ट होना चाहिए, कोकोपीट होना चाहिए और रेत होनी चाहिए।
इसमें हमने किसी भी तरह का मिट्टी नहीं डाली, जो गार्डन सॉइल है वो नहीं डाली। अगर आप चाहें तो थोड़ी मात्रा में आप वो डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जैसे हमने बोला कि कम स्पेस है, जितना ज़्यादा आप मिट्टी डालेंगे, गार्डन सॉइल डालेंगे, उतना ज़्यादा वो हार्ड होगी, उतना ज़्यादा वो स्टिकी रहेगी और उतना ही मुश्किल होगा रूट्स का ग्रो करना। तो ट्राई कीजिए सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही आप अपनी जो सॉइल है वो बनाइए। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप 1/3 भी लेते हैं तो आपका पूरा जो मिक्स है वो अच्छा मिक्स बन जाता है, और उसमें सब क्वालिटीज़ होती हैं। उसमें वाटर रिटेंशन क्वालिटी भी होती है, ड्रेनेज भी प्रॉपर रहता है और उसको खाना भी पूरा मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप अपने मिट्टी में वो मिला सकते हैं, और फिर आपका जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। ये दो जो चीज़ें हैं, ये परलाइट है, ये वर्मीक्यूलाइट है, ये भी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा सा सॉइल को और इम्प्रूव करती हैं और ये ड्रेनेज में बहुत हेल्प करती हैं। ये बहुत ही हल्की होती है, इससे जो सॉइल है वो भारी नहीं होती है और रूट्स जो हैं बहुत आसानी से ग्रो करती हैं। ये ज़्यादातर हम कैक्टस या सक्यूलेंट में यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारा हमने परलाइट और वर्मीक्यूलाइट ऐड कर रखा है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी पानी पसंद नहीं होता और जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो झट से नीचे से निकल जाना चाहिए। तो कैक्टस और सक्यूलेंट के लिए आप इन दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, उसमें 1/3 आप ये 3 चीज़ें ग्रो कर डालेंगे तो फिर आपका जो प्लांट है बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आप सॉइल जो गार्डन सॉइल होती है उसको कम से कम यूज़ करिए। एटलीस्ट अपने जो प्लांट जो हमारे कंटेनर गार्डन्स हैं या कंटेनर्स हैं उसकी मिट्टी के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गार्डन सॉइल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हैवी सॉइल बनेगी, उतना ज़्यादा दिक्कत होगी रूट्स को ग्रो करने के लिए। इसीलिए ये 3 चीज़ें भी अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से अपना सॉइल बना सकते हैं और जो प्लांट है वो बहुत आसानी से ग्रो करता है। सेकंड जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेनर गार्डनिंग के पर्सपेक्टिव से, वो है वाटरिंग की। वाटरिंग हमेशा ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। दोनों ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों प्लांट के लिए ख़राब रहती है। इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि हम ओवर वाटर तो नहीं कर रहे, अंडर वाटर तो नहीं कर रहे। जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा एक छोटा सा पॉट है जिसमें जो सॉइल है वो कम्प्लीटली ड्राई है अभी। उसमें अभी हम जल्दी से इसमें पानी डालेंगे और हम देखेंगे कि हम क्या बड़ी गलती करते हैं जब भी हम प्लांट्स में पानी डालते हैं। तो इसमें हमने ऊपर से पानी डाल दिया है और फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें पानी नहीं डालते और इसके बाद हम भूल जाते हैं कि हाँ इसमें पानी की ज़रूरत है। उसमें हमें लगता भी है ऊपर से, जैसे ऊपर से पूरा का पूरा ये गीला है तो हमें लगता है कि प्लांट को पूरा पानी मिल गया होगा, लेकिन अगर हम इसको साइड में से देखें, ओनली 10% ऑफ द एंटायर पॉट, सिर्फ 10% पॉट को ही पानी मिला है। ऊपर से आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा गीला हो गया, लेकिन साइड से पूरा का पूरा सूखा हुआ है। तो जितनी भी रूट्स यहाँ पर होंगी उनको कभी भी पानी नहीं मिलेगा। आप ऊपर से देखेंगे गीला है, या तो आप पानी नहीं डालेंगे या पानी डालेंगे बहुत कम डालेंगे, लेकिन साइड से देखेंगे अगर तो सारा का सारा सूखा हुआ है और इसको पानी कभी नहीं मिलता। इसको अंडर वाटरिंग कहते हैं। और आपको लगेगा कि आप पानी डाल रहे हैं, लेकिन साइड से सारा का सारा वो सूखता रहेगा और जितनी रूट्स यहाँ पर हैं वो सूख जाएंगी। तो बेटर क्या रहता है, जब भी आप पानी डालिए अच्छे से पानी डालिए। जब आपको तब तक पानी डालना है जब तक वो नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। तो पानी हमेशा ज़्यादा ही डालना चाहिए, स्पेशली अभी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। तो आपको बहुत 2 या 3 बार पानी डालना होगा, तब तक पानी डालना होगा जब तक वो नीचे से निकलना न लग जाए। अगर वो नीचे से निकलने लग जाता है, वो एक अच्छा सिग्नल होता है कि हाँ पूरा जो जितने भी सॉइल है उसको मिट्टी को पानी मिल गया है, और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्पॉट में जा सकते हैं। लेकिन इसको आपको पहले अच्छे से पानी देना होगा। अगर आप इसको अब भी देखें, इस तरह से थोड़ा सा ये गीला होना शुरू हो गया है, इस तरह से अब भी इसको पानी नहीं मिला, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा मॉइस्ट है और इसको और पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप पानी डालें, आपको अच्छे से थरली वाटर करना है, तब तक पानी डालना है जब तक ये नीचे से निकल ना जाए। सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है ओवर वाटरिंग से रिलेटेड, कि आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। आपको जब भी पानी डाल रहे हैं आपको ऊपर की सॉइल की सरफेस चेक करनी है।
अगर वो मॉइस्ट लगती है आपको, अगर आपको लगता है कि आपको छूने से कि अगर इसमें मॉइस्चर है, इसमें पानी है, तो आपको पानी नहीं डालना होगा। लेकिन जब भी आपको लगे कि ऊपर से कि वो थोड़ा सूख रहा है, तब आपको पानी डालना है। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, एक अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग के बीच में। जब भी आप पानी डालें, अच्छे से पानी डालिएगा, चाहे वो कैक्टस हो, सकुलेंट हो, कोई भी प्लांट हो, उसमें भी आपको अच्छे से पानी डालना है, जिससे पूरी की पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाए और नीचे से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलने लग जाए। थोड़ा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो सकता है, जैसे कैक्टस और सकुलेंट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है सॉरी, तो फिर थोड़ा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा कम कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम बाद आप उसमें दोबारा री वाटर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको पानी डालना है, अच्छे से डालना है कि वो नीचे से निकल जाए। तो ये एक चीज़ करनी है। और दूसरा, आपको पानी तभी डालना है जब वो पूरा का पूरा सूख जाए, और फिर उसके बाद जितना भी हमारा एक्सेस मॉइस्चर है वो नीचे से निकल जाए। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पानी ऐसे डालना है। और फिर जो थर्ड चीज़ है, सबसे पहले हमने सॉइल की बात की, सेकंड जो है हमने पानी की बात की, थर्ड जो है आपको जो प्लांट है वो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती हो। अगर आप इंडोर ग्रो कर रहे हैं, इंडोर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हमने देखा है कि हम थोड़े से लालची हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा प्लांट है, इसलिए हम इसको बेडरूम में रखेंगे कि जब हम सोएंगे तब हमें ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, इसलिए हम इसको अपने बेडरूम में ग्रो करेंगे। लेकिन हमारे जितने भी रूम्स होते हैं ज़्यादातर बंद रहते हैं, ठीक से वेंटिलेशन नहीं होता, क्लोज एनवायरनमेंट मिलता है। इसलिए ये जो प्लांट्स हैं ये ओपन में ग्रो होने के लिए बने हैं, ये क्लोज एनवायरनमेंट में ग्रो होने के लिए नहीं बने। तो ट्राई कीजिए इसको जितना ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट दे सके उतना दीजिए, जितना अच्छी लाइट दे सके उतना दीजिए। इसका एक ऐप आता है, चाहे आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड का फ़ोन हो, आप अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ऐप होता है लाइट मीटर के नाम से। लाइट मीटर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो लाइट मीटर एक ऐप है, नहीं तो लक्स, जो लक्स होता है। तो ये दो चीज़ें अगर आप सर्च करेंगे आपको अपने ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। और फिर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये आपको एक रीडिंग बता देता है कि ये जो नंबर आ रहा है अभी, ये एक तरह से रीडिंग है ये कितना वेल लिट रूम है। तो अभी जो इसकी रीडिंग आ रही है वो अराउंड 150 180 के बीच में आ रही है। तो ये वाला जो लाइट की कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। प्लांट्स को अराउंड 600 700 लक्स चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए। तो जब तक यहाँ पर 600 700 नहीं हो, तो आप ये अपना फ़ोन लेके अलग अलग कॉर्नर्स में जा सकते हैं रूम के, और फिर वहाँ पर अपना फ़ोन जो है रख के चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी लाइट आ रही है। अगर आप अपने विंडो के पास इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर अच्छी लाइट आ रही है। नेकेड आई से इतना नहीं पता चलता। नेकेड आई से ये वाला भी जो रूम है ये वेल लिट रूम है, और फिर इसमें इतना लाइट हमें लगता है कि इतनी लाइट है कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आप लाइट मीटर्स ऐप वगैरह से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना अच्छा कंडीशन नहीं है और प्लांट यहाँ पे अच्छे से सरवाइव नहीं करेगा। तो अगर आपका जो कंडीशन है यहाँ पे 600 700 शो कर रहा है रीडिंग में, तो वो इंडोर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक अच्छी कंडीशन है। और फिर उसके बाद जो प्लांट्स हैं, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको अगर आप यहाँ पे कम रीडिंग वाली जगह पे अगर आप अपना कोई प्लांट लगाते हैं तो चांसेस आर कि वो प्लांट अच्छे से नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे करके मरने लगेगा। तो बेटर यही रहता है कि आप जो प्लांट के जो लोकेशन है वो एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद प्लांट को रखिए। मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ बिफोर वी टेक दी क्वेश्चंस। सबसे पहले सॉइल का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल अगर आपकी लूज रहेगी, न्यूट्रिशियस रहेगी, तो किसी भी तरह के प्लांट को ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड जो है वाटरिंग से रिलेटेड है। अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग दोनों ही खराब होते हैं। पानी जब भी दीजिए उसको फुल थरोली वाटर करिए कि नीचे से ड्रेन करिए, और पानी तभी दीजिए जब वो ऊपर की जो सॉइल है वो
मॉइस्ट, जब वो ड्राई हो तभी आपको वाटरिंग करनी है। गर्मी में ज़्यादा अंडर वाटरिंग की, ओवर वाटरिंग की दिक्कत नहीं आती। गर्मी में कम ही पानी होता है, ज़्यादा पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो गर्मियों में आप दिन में 2 बार भी पानी दीजिए, तो फिर भी वो ओवर वाटरिंग नहीं होगा और जितना भी पानी चाहिए रहेगा प्लांट को अच्छे से मिलता रहेगा। थर्ड हो गया जो लोकेशन का। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो वेल लिट होनी चाहिए, जहाँ पे जो खिड़कियां हैं वो खुली हों, जो हवा है वो ताज़ी आती रहे, जिससे जो प्लांट है वो ग्रो करने में बहुत आसानी से हो। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिलेक्शन ऑफ पॉट होता है। पॉट का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जो पॉट का साइज होता है, टाइप होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह के पॉट्स को हम हमेशा ही प्रेफर करते हैं, और मैंने अपनी तो टेरेस गार्डनिंग में एटलीस्ट सब जगह अब ये यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये फाइबर के पॉट्स होते हैं, जियो फाइबर के, और काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं, 5 से 6 साल बहुत आसानी से चल जाते हैं, और लाइट वेट रहते हैं। तो जिसको भी अगर अपने टेरेस में गार्डनिंग करनी है, बालकनीज में गार्डनिंग करनी रहती है, वो इस तरह के पॉट्स जो हैं कहीं से भी ले सकते हैं। हमारी साइट पे भी अवेलेबल हैं, नहीं तो कहीं ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट जियो फाइबर जो पॉट्स रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स गिनवाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो शेप रहती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी आती है एज़ कम्पेयर टू टेराकोटा पॉट्स। टेराकोटा पॉट्स थोड़े से कोनिकल शेप होते हैं, तो उसमें मिट्टी ऑलमोस्ट आधी आती है जो इसमें आती है। इसीलिए आप सेम स्पेस में उसको एक तो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सेकेंडली इसमें साइड में बहुत ज़्यादा साइड के जो इसकी जो वॉल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे जो हवा है वो आर पार होती है। जो टेराकोटा के पॉट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उसमें भी छेद होते हैं, और अगर आप कोई मिट्टी का घड़ा देखें तो उसमें पानी जो है ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहता है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है, इसमें भी पोर्स होते हैं साइड में, और नीचे कोई छेद करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना एक्सेस मॉइस्चर है वो अपने आप निकल जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है ये। और थर्ड जो इसका मेजर बेनिफिट रहता है, क्योंकि इसमें साइड में छेद होते हैं, इसको रूट प्रूनिंग पॉट्स भी कहते हैं, इसमें रूट एयर प्रूनिंग पॉट्स भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी रूट्स होती हैं वो रूट बाउंड नहीं होती इन तरह के प्लांटर्स में। रूट बाउंड का मतलब है कि जैसे ही रूट्स को जगह मिलनी बंद हो जाती है, अगर आप अपने पॉट्स देखें वो गोल घूमना शुरू हो जाती हैं। इस तरह के पॉट्स में ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे करके इससे निकलने की कोशिश करती हैं, और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आती हैं वो प्रून हो जाती हैं एक तरह से। तो जो रूट स्ट्रक्चर है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह के पॉट्स को आप लेके आ सकते हैं और इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। और प्लांट्स जो है इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, अंडर वाटरिंग नहीं होता, ओवर वाटरिंग नहीं होता। एक दिक्कत इसमें आती है, इसमें भी एक दिक्कत आती है कि इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा है इसका। जितना भी आप पानी डालते हैं, जितना एक्सेस मॉइस्चर होता है वो नीचे से निकल जाता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रे है उसके नीचे रखिए, उसके ऊपर रखिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना थोड़ा सा फर्श जो है वो गंदा होने का डर रहता है। अगर आप किसी ट्रे के अंदर रख देते हैं तो जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और फिर आपका फर्श जो है वो गंदा नहीं होगा। हम ज़्यादातर इसको टेरेस गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जितना भी एक्सेस मॉइस्चर अगर निकल भी जाता है, फर्श पे भी लग जाता है, तो ज़्यादा उसका ध्यान नहीं देते, बाद में एक बार में फर्श को साफ कर देते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छे पॉट्स हैं और आप भी ग्रो कर सकते हैं। And what do we call them? These are called geofiber pots. So geofiber, so I'll write this. And yes, so these are available on our website, Swati ma'am. So दो हमारे पास दो साइजेस में अवेलेबल हैं। 8 इंचेस जो छोटे प्लांट्स होते हैं, आपके पास कोई हिबिस्कस है या कोई भी छोटा प्लांट है, उसके लिए 8 इंचेस, और अगर आपको कोई वेजिटेबल ग्रो करनी है, कोई बड़ा प्लांट ग्रो करना है, उसके लिए 12 इंचेस। तो हमने दो साइजेस में ये रखे हैं, एक 8 इंचेस का है, एक 12 इंचेस का है। Right. So with this we come to the end of the content. तो अभी हमारे पास 5-6 मिनट हैं where you can ask whatever questions you have related to the things that you have talked about today. और कोई भी आपका कोई भी जनरल क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई प्लांट नहीं चल रहा है या कोई प्लांट में दिक्कत आ रही है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम Yes. उसके बारे में डिस्कस करें। One question is there from कृष्णा मैम, सुपरमॉम कृष्णा माथुर, कि वो Yeah. कह रही है उनका तुलसी का जो प्लांट है वो बहुत जल्दी सूख जाता है।
ऑलराइट। सो तुलसी के प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने आज डिस्कस करा है कि सॉइल पे आप फोकस करिए। तो फिर अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जितनी ठंड में दिक्कत आती है। ठंड में उसको कोहरे से बचाना होता है, गर्मियों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिए। तुलसी में जो दूसरा हमें काम करना होता है, जो मंजरी होती है, जो फ्लावर होता है तुलसी के प्लांट का, उसको कट करते रहना चाहिए। जैसे ही हम उसको ग्रो करने देंगे, उससे क्या होता है, प्लांट को लगता है, प्लांट, हर एक प्लांट की एक साइकिल होती है। प्लांट के सबसे पहले सीड होता है, सीड से वो प्लांट बनता है, उसके बाद वो फ्लावर बनता है, फ्लावर बनाता है, और उसके बाद वो पूरा मर जाता है। तुलसी में भी यही होता है। जैसे ही उसकी फ्लावरिंग शुरू होती है, उसको एक तरह से सिग्नल मिलता है कि मेरा जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होने वाला है, और फिर वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है। तो जैसे ही आपको फ्लावरिंग दिखती है, उसमें फ्लावर आने लगता है, उसको कट कर दीजिए। उससे क्या होगा, ब्रांचिंग में वो ज़्यादा अपना ध्यान लगाएगा, और जो तुलसी की जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग होते रहेगी, और जो थिकनेस है स्टेम की वो भी बढ़ते रहेगी। तो एक काम जो आपको करना है वो यही करना है कि जैसे ही आपको कोई फ्लावर दिखे उसको आप कट करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग हो। राइट। एक आरओ वाला क्वेश्चन था कि कैन वी यूज वेस्ट आरओ वाटर। तो इस हम किसी भी तरह का पानी यूज़ कर सकते हैं, कि हम आरओ का वेस्ट पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं अहमदाबाद में था एमबीए के लिए, तो वहाँ पर जितना भी वेस्ट वाटर था मैं उसी से ही अपनी गार्डनिंग करता था। मैं आरओ का पानी यूज़ नहीं करता था, या जो नॉर्मल टैप वाटर है वो नहीं करता था। सिर्फ आरओ के वेस्ट वाटर से जो गार्डनिंग है वो करता था, और कोई दिक्कत नहीं आती थी। प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करते थे, बहुत आसानी से ग्रो करते थे। ओके, थैंक यू सो मच। रितु मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है। हाँ रति, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। हेलो सर, मुझे पूछना था कि मेरे पास इंडोर प्लांट है बहुत सारे, हाँ जी मैम। और वो समहाउ क्या होता है कि 6 मंथ 7 मंथ तक बहुत अच्छा होता है, हाँ फिर जी। ऑल ऑफ सडन वो प्लांट खत्म हो जाता है, पत्ते हाँ झड़ जी। जाते हैं, वो पूरा सूख जाता है, सेटल होने के बाद भी सूख जाता है। हाँ जी। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न यही है कि जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको काफ़ी टाइम तक आप इंडोर नहीं रख सकते, उनको बाहर लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं वीकली आप ले जाती हूँ, वीकली वन हाँ टू जी। टू डेज ये धूप में रहते हैं वो प्लांट हाँ मेरे। जी। एक बार मैं आप ये ऐप भी चेक करिए कि आप ये जो लाइट का जो रीडिंग है वो कितना है। रीडिंग अराउंड 600-700 मिनिमम रहना चाहिए। उसके बिना जो प्लांट्स को ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और जो दूसरा है, अगर आपके पास अरीका पाम है, उसमें आपने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि उसके स्टिक्स अगर बहुत सारे हैं तो वन बाय वन वो सारे ब्राउन होंगे, और फिर वो गल के सारे गिरने लगेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि उसको ठीक से हवा नहीं मिल रही, और ठीक आपने जैसे बोला कि मैं वीक में एक बार लेके जाती हूँ, तो वो थोड़ा सा गलत मेथड होता है कि प्लांट्स को ज़्यादा मूव होना पसंद नहीं रहता। उनको जहाँ पर एक जगह पे ग्रो करते हैं वहीं पर ही अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए। तो अरीका पाम हो गया, आपका जो फिडल लीफ है। इनफैक्ट मेरा रीका पाम 1 ईयर चला, 1 ईयर हम्म, के बाद वो खराब हो गया, हाँ जी। तो सेम वो जगह पे सेम प्रोसेस के बाद। हम्म, तो वो उसी का एक रीज़न ये भी है। जो दूसरा रीज़न है वो फंगस से रिलेटेड होता है, कि अगर आपकी सॉइल काफ़ी पुरानी हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा गीली रहने लग गई, तो उसमें फंगस ग्रो होती है। तो फिर उसमें आप ओके। हर 3 या 4 महीने में आप फंजीसाइड ले लीजिए इंडोर प्लांट्स के लिए, किसी और प्लांट के लिए नहीं। जैसे एडिबल प्लांट्स के लिए हम कोई केमिकल रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर इंडोर के लिए, अगर आप साफ हो गया या कोई भी बैविस्टीन हो गया, ये अगर आप फंजीसाइड लेके आते हैं, तो उसका 1 टेबलस्पून आप 5 से 6 लीटर पानी में मिला के, वो उस वाले पानी से एटलीस्ट 2 या 3 महीने में एक बार आप उसकी वाटरिंग कीजिए। तो जितना भी फंगस है सॉइल में वो सारी की सारी मर जाती है, और फिर किसी भी तरह का इशू नहीं आता। ओके, जैसे मैं ना अभी 3-4 मंथ पहले फन लेके आया था। फन क्या हुआ कि 3-4 महीने बिल्कुल नॉर्मल था, और हम्म। ऑल ऑफ सडन क्या होने लगा है कि उसके पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं। जैसे कुछ पत्ते रिति, मेरे कैमरे पे पिन करो एक बार, तो मैं दिखाती हूँ एक बार। हाँ जी मैम, एक मिनट। फर्न हमारे पास भी है यहाँ पर, अगर आपको दिखाओ। जैसे ये फर्न। पत्ते आप नोटिस करो, हाँ जी। ये बहुत अच्छा था, ये 3-4 महीने तक अच्छा रहा, लेकिन ऑल ऑफ सडन हम इनके पत्ते ऐसे ऐसे गिरने लगे हैं।
थोड़ा सा ये सीजन की वजह से भी होता है। अगर ठंड में अगर थोड़े से पत्ते ब्राउन भी हो जाएं तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो जितने भी आपके ब्राउन आपको स्टिक्स दिख रहे हैं उसको आप कट कर दीजिए अपने किसी भी सीजर से, और जितने भी नए पत्ते हैं वो सारे के सारे हेल्दी आने चाहिए। अगर वो तो नए हेल्दी पत्ते तो अभी आने स्टार्ट नहीं हुए, हाँ पुराने जी, सारे गिरने लगे हैं। आप देखो, हाँ मैं इसलिए दिखा रही हूँ जूम हाँ करके। जी, काफी वैसे हेल्दी लग रहा है, इतनी कोई इशू नहीं लग रहा। जितने भी नए पत्ते आएंगे वो सारे ठीक लेकिन आएंगे। क्या था ना कि इसमें ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। हाँ ये जी, ऑल ऑफ सडन अभी 10 दिन में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। हाँ जी। तो आप इसके जितने भी ब्राउन वाले लीव्स हैं वो उसको कट कर दीजिए सीजर से, और फिर ओके। जितना भी उसका अगर उसमें सॉइल उसकी हार्ड है तो उसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए। अदरवाइज द प्लांट लुक्स वेरी हेल्दी। अगर आप इसको भी देखें सिमिलर ही प्लांट है, जो आपके वाला है बिल्कुल वही है। इसमें भी अब नए पत्ते आने लग गए हैं और इसमें भी अब नई ग्रोथ आने लग गई है। इनफैक्ट यहाँ पे छोटे छोटे नए फर्न्स भी आने लग गए हैं, सो विच इज अ गुड ओके, सिग्नल। ये छोटा सा मतलब वो प्लांटर है। पुराने जो जड़ है उनको काट के हटा देना है हाँ और जी, फिर नए का वेट करना है। हाँ जी। तो इसमें ओके। भी यहाँ पे थोड़ा सा है जो पत्ते हैं वो ब्राउन हो गए थे, बट दैट वाज ड्यू टू डॉर्मेंसी। क्यों ठंड में प्लांट्स जो है डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, लेकिन अब जितने भी पत्ते आ रहे हैं वो काफी ब्राइट ग्रीन आ रहे हैं, तो दैट इज अ गुड साइन। ओके, थैंक मे- यू। थैंक यू। मेरा एक Thank सवाल you. था। हाँ आ, जी। अगर Archana, हम दो दो तीन दिन के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो हम्म। पानी का एडजस्टमेंट कैसे करें प्लांट्स के लिए? 2-3 दिन के लिए फिर भी मैनेजेबल है। थोड़ा सा इनको एक तो आपको शेडेड एरिया में लेके आना होगा, इंडोर नहीं लेके आना होगा, लेकिन शेडेड एरिया में लेके आना होगा। जैसे कोई पेड़ है उसके नीचे आप रख सकते हैं, तो ये एक चीज़ है। पेड़ आप नहीं, बालकनी में ही है, जो हाँ बालकनी में जी, जो प्लांट्स तो है। आपको कहीं एक ऐसे स्पॉट में लेके आना होगा जहाँ पर थोड़ी सी कम धूप आती हो, क्योंकि जितने ज़्यादा धूप आएगी उतना ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा। तो पहला काम आपको उसको थोड़ा शेडेड एरिया में लेके आना होगा। सेकंड, आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन काफ़ी कॉमन हो गया है। तो ड्रिप इरिगेशन में आप मोबाइल से भी आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं जिससे पानी हो सकता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है। नहीं तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन का हैक्स वगैरह चेक करेंगे तो कई ऐसे होते हैं कि जैसे ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, तो आप कोई वाटर का सोर्स जैसे कोई बकेट है वो लेके इसके अंदर कोई एक कॉटन का कपड़ा डाल के उसको आप इसमें डाल दीजिए। धीरे धीरे करके पानी जो है वो यहाँ से निकल के इसमें जाता रहेगा, बट ये थोड़ा सा हाइट पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू दी प्लांट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़े प्लांट्स हैं। अगर बहुत सारे प्लांट्स हैं तो हम जब भी हम जाते हैं, हम तो अपने नेबर्स को ही बोल के जाते हैं, वी गिव देम अ स्पेयर की, और फिर उसको उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको पानी दीजिए। कम प्लांट्स में ये जो हैक्स हैं वो चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा में अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं, नहीं तो आपके पास अगर ज़्यादा प्लांट्स हैं तो आपको ये करना होगा कि अपने नेबर्स को की दे के उन पे रिलाय करना होता है। तो दैट इज़ वन थिंग। नहीं तो आपको इक्विपमेंट में थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि जो ड्रिप इरिगेशन वाला जो मेथड होता है। हेलो ओके। thank you so much, सर, मैं sir. मीठा नीम का पौधा लगाती हूँ करी लीव्स का, तो वो मेरा अच्छे से ग्रो नहीं करता है प्लांट। हाँ जी, तो मीठी नीम जो कड़ी पत्ता है वो काफ़ी एक उसको तो जगह चाहिए रहती है ग्रो करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल उसकी काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, काफ़ी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और उसमें भी आपके जितने भी फ्लावर्स आते हैं उसको तोड़ दीजिए। किसी भी प्लांट पे जिसके हमें लीव्स से ज़्यादा मतलब है उसमें हमें फ्लावर्स को ग्रो नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही फ्लावरिंग पे हमारे पास 3 करी लीव्स के पौधे हैं, एक का हम कभी भी फ्लावर नहीं तोड़ते कि बस शो करने के लिए कि क्या डिफरेंस है। तो उसमें जो हमारा जो प्लांट है जिसका हम फ्लावर नहीं तोड़ते, उसके बिल्कुल छोटे छोटे से लीव्स हैं, उसमें लीव्स बड़े हो नहीं रहे। और जिसका हम फ्लावर तोड़ते रहते हैं सेम वैरायटी है और उसका ऑलमोस्ट उससे 3 या 4 गुना बड़ा लीफ है। तो एक ये भी काम करना है, और जो लास्ट काम आपको अपने करी लीफ के साथ करना है वो यही करना है कि आप उसकी प्रूनिंग करते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी एक ब्रांच काफ़ी बड़ी हो गई है तो आप उसको ऊपर से कट कर दीजिए, जिससे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी प्लांट उतना ही स्ट्रांग होगा, उसकी जो स्टेम है वो उतनी ज़्यादा थिक होगी और प्लांट जो है ज़्यादा हेल्दी होगा। तो प्रूनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर करी लीव्स ऑल्सो। जी सर, एक बार एकदम बड़ा हो गया था प्लांट, उसमें कुछ फूल और फल भी निकला था। हाँ जी, कटिंग किया मगर कुछ डॉट डॉट व्हाइट डॉट निकल आए, तो उसको उसके बाद पौधा सड़ने लगा। फिर ओके। नए पौधे निकले, एक मर गया एक जिंदा, वो बहुत मतलब स्लोली ग्रोथ कर रहा है।
हाँ जी, तो अगर वो स्लो ग्रोथ कर रहा है लेकिन वैसे हेल्दी है, तो आप सॉइल को थोड़ा सा लूजन करिए, ऊपर से थोड़ा सा लूज करिए, उसमें थोड़ी सी खाद डालिए। अभी इसका ग्रोथ सीजन है, अगर आप अभी खाद डाल देंगे तो जो प्लांट है वो ऑटोमेटिकली जल्दी ग्रो करेगा। ओके सर, थैंक यू। ये जो सॉइल है ये कब लूज करनी चाहिए, कितने टाइम बाद? तो डिपेंड करता है, अगर आपकी सॉइल जो है बहुत हार्ड है, जैसे कि मैं अगर इस वाले प्लांट की देखूं तो ये बहुत हार्ड सॉइल है, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज ही नहीं की है सॉइल। तो हर मे बी 15-20 दिन में आप एक बार आप चेंज कर इसको लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा लूज है, जैसे कि इस वाले में हमने कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल हेलो हेलो Hello. मैम, आवाज आ रही है, विजिबल नहीं है। जस्ट मोमेंट, मेरे कैमरा ऑन है मैम। वीडियो पॉज लग रहा है। हाँ जी, वो लाइट टीवी तो खत्म हो गया, वी आर यूजिंग मोबाइल। Yes, but your voice is also cracking. ऑडिबल। Hello. हेलो No, sir, you're not audible हेलो properly. You're not audible properly. I'm using मोबाइल देखा, तो अभी लाइट चली गई है, तो That's okay. Video is not coming. That's not a problem. एक कुमुद मैम का क्वेश्चन है कि उन्होंने रात रानी का प्लांट लगाया है, उसके जो बर्ड्स है वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं, बट जो फ्लावर्स हैं वो नहीं निकल रहे हैं. सो व्हाट कुड बी द रीजन? हाँ, तो उसका यही है, तो वाटरिंग हैज टू बी गुड, पानी काफी कम है, तो उसमें पानी अच्छे से देना होगा, पानी देना चाहिए। दूसरा जो चाय पत्ती लगाई, तो उसमें चाय लेके थोड़ा सा डाल के जो ऑयल है वो अपने आप ही जो तेल से मिलेगी, और उसके बाद वो ठीक से ग्रो करना शुरू हो जाए। Okay, so you were not clearly audible, but yes, आपने पानी के लिए बताया कि उसमें पानी वाटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, राइट? हाँ जी, सेकेंड इज चाय पत्ती, जो टी लीव्स है। चाय पत्ती. हाँ जी, ओके, सो चाय पत्ती को ऐसे ही डालना होता है नॉर्मल? उसको वॉश करके एंड देन यू हैव टू पुट इट इन सॉइल। ओके, सो कुबुत मैम, उसको प्रॉपर पानी आपको डालना है उस प्लांट में, और जो चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसको वॉश करके आपको उस प्लांट में डालना है. थैंक यू। थैंक यू मैम. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस श्रुति मैम, चाय पत्ती क्या हम किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं धो करके?
तो चाय पत्ती जो है वो फ्लावरिंग काफी हेल्प करता है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, आपका चांदनी हो गया, प्लूमेरिया, चंपा हो गया, इस तरह से आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें डालेंगे, वो फ्लावरिंग में हेल्प करता है, तो फिर उसमें डालने का बेनिफिट ज्यादा है। Okay. So, Babita ma'am, I hope कि